आज हम लोग एपीजे स्कूल सॉल्टलेक में हैं। यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था उसका एक चरम था। यहाँ पे आज क्विज कंपटीशन हेल्ड हुआ, बच्चे पार्टिसिपेट किए। कुल 10 टीम थी जिसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टीमों ने जीता है। हम आपको दिखाएंगे किन किन टीम ने ये चीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड का खिताब जीता है। यही नहीं, हमने जब पूरी कवरेज में देखा कि किस प्रकार से सिर्फ जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने ही नहीं बल्कि जो ऑडियंस में थे उनका भी किस तरीके से उत्साह था, जिस प्रकार से वो उन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वो जानते थे। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज की और पूरी किस तरीके से पूरी तैयारी की गई। Good morning everyone. Respected Vice Principal, Gupta ma'am, respected teachers, the young bright minds. First of all, on behalf of the Office of ADG Vigilance, our sincere gratitude to APJ School for giving us the opportunity to be here and have a wonderful program that we will be studying in a few minutes. You must be Inspector of Income Tax, who is playing a dual role of being the quiz master as well today. We have among us Abhyanand Sharma, the ITO. We have among us Sukhendu Nashkar, the Steno Grade 1, who is helping with the vigilance team. Mr. Vikas Kumar, the MTS with the Income Tax Department. So we have 8 dignitaries who are here with our students for an important and very enchanting experience, a lot of awareness that is going to be created, which you need to rope in, keep in mind. So best of luck to the quiz team who's waiting outside. अभी पूरा प्रोग्राम है किंतु रूपचंद आकाश विद्या घोष बेसिक हेलो थैंक यू वेरी मच थैंक यू टीम 5 ऋषिका बैच Come here. Very good answer. See, what is your name first? Neerav, answer बताओ. सबको. He is D.Y. Patil and the stadium in Navi Mumbai is named after his name. D.Y. Patil International Stadium. Very good. Wonderful answer. First answer given by. सर विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कैंपेन चलाया था इन लाइक मंथ नवंबर में इसका एंडिंग का बात। तो लाइक यू हैव चूज दिस स्कूल and a competition, quiz competition. What was the preparation regarding that? Basically, ma'am, can I speak in English? Okay. Basically, the thing is, it's not conducted by some vigilance department. Every department under Government of India has a vigilance wing. For us, we are coming from Income Tax Department. Our vigilance directorate is based in Delhi. For Eastern region, for the entire Eastern region, we have a office in Kolkata. This program is being conducted by that particular office, Office of ADG Vigilance East, Kolkata. And for the last 3 months during the Vigilance Awareness Campaign, we are conducting so many programs. One of them was coming to the schools, to the younger generation, to the upcoming citizens of the India to brief them about this vigilance is not only about the government officers, but it's a shared responsibility. And to make that program interesting, not only a lecture or seminar kind of thing, we also have had a quiz contest, which you must have seen the boys and girls immensely enjoy. So when you decided to have this quiz competition, and there were many more essay competition, but I will particularly talk about today's quiz competition. It was quite well organized and interesting. So what was in your mind when you decided to have this? Basically, this is a regular program. Every year we do conduct this kind of program, so it's nothing new. So, and we have one added advantage. We have Devashish Sarkar, who is an Direct Recruit Inspector of 1996 batch. So he is an asset for us. So whenever we go out, there is another guy, Rajiv. Rajiv is also there. So of these two, either Devashish or Rajiv, they conduct the quiz contest, which the kids normally immensely enjoy. For us, we don't have to outsource or don't have to find someone from outside.
success. So my success is there. Okay, one piece from this for each of you, provided you sit quietly. No answer please, no answer please. You will be ruled out of the auditorium. मैम आपका स्कूल चूज हुआ था दिस टाइम, इसको विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ उसके लिए, सो कैसा लगा आपको? मेरा नाम है शाश्वती दासगुप्ता, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ एपीजे स्कूल सॉल्ट लेक की। तो आज का जो ये सेशन था विजिलेंस प्रिवेंटिव विजिलेंस अवेयरनेस का, तो इस क्विज सेशन का जो क्वेश्चन है ड्राफ्टेड था फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत ही एनरिचिंग था। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मुझे खुद पता चला कि बच्चे कितने अच्छे से कितना कुछ जानते हैं। पर मुझे एक और चीज़ पता चली कि बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कुछ बहुत पास वाली चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, जैसे कि कैलकाटा के बहुत बेसिक मॉन्यूमेंट्स है जिनके बारे में उनको पता नहीं था। तो इस क्विज ने सिर्फ बच्चों को नहीं मुझे भी एक अवेयरनेस क्रिएट किया और मुझे इंट्रिग किया कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ एक हेरिटेज वॉक अपनी ही सिटी का, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ पता है, स्पेस के बारे में पता है, खेल के बारे में पता है, क्योंकि इस जनरेशन के बच्चे जो होते हैं फोन के साथ इतने ज़्यादा उनका कनेक्शन रहता है कि वो और कुछ नहीं देखते। घर के एकदम पास ही है लैंडमार्क जो है कोलकाता, इतना पुराना एक शहर है, कितनी लंबी इतिहास है कलकत्ते से जुड़ी हुई, जो हमारे इस जनरेशन के बच्चों को पता ही नहीं है। तो इस क्विज से मुझे वो आइडिया मिला कि कम से कम अभी मुझे बच्चों के लिए ये सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि कुछ तरह के हेरिटेज वॉक हो, या हम लोग जो पिकनिक करते हैं रिजॉर्ट में जाते हैं उन लोगों को मॉडर्न एमिनिटीज देते हैं, पर अपने ही इतिहास से बच्चे छूट रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो हम एजुकेशन के फील्ड में हैं उनके लिए ये एक होना चाहिए कि अपनी जो रूट्स है उससे, ताकि बच्चे कनेक्टेड हो। तो इसलिए मैं बहुत जल्द अपने स्कूल में भी एक क्विज क्लब का स्टार्ट करने वाली हूँ और रेगुलर बेसिस में इसको करिकुलम में भी ऐड करूँ। जिस तरीके से आपके बच्चे सिर्फ जो पार्टिसिपेट किए थे वही नहीं, बल्कि आपके जो ऑडियंस के भी बच्चे थे, जिस तरीके से मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस, वहाँ पे उनका आंसर फर्स्ट राउंड से उनका था, तो उसको लेकर आप वही मैं बोल रही थी कि मतलब मैंने जो एक्साइटमेंट ऑडियंस में देखा, 100% एंगेजमेंट था उन लोगों का और हर एक क्वेश्चन में, और मेरे ख्याल से ऑडियंस में से जितने भी जवाब आए थे सारे करेक्ट जवाब थे। बच्चों को इतना कुछ पता है और ये जो प्रोसेस है ये भी एक तरह का लर्निंग है। इसमें इन लोगों के लिए फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और इन्फॉर्मेशन, जो सर ने क्विज मास्टर सर ने बोला कि इंफोटेनमेंट, ये एक रियल सेंस में इंफोटेनमेंट था। और बच्चे बहुत मतलब मैं समझ नहीं सकती कि 1.5 घंटे तक बच्चे बैठे रहे, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे, एंगेज थे, तब उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों को मतलब अपने एजुकेशन में, अपनी लर्निंग लेसन्स में, टीचिंग लेसन्स में इस तरह के इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अगर हम लोग भी ऐड करें तो मुझे लगता है हमें भी इस तरह का 100% एंगेजमेंट बच्चों का मिले। आप लोग सेकेंड प्राइज जीते, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कैसा लग रहा है। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में आप लोग को सबसे ज़्यादा मतलब शॉकिंग इन्फॉर्मेशन कौन सा मिला जो आपको नहीं पता था? डिफरेंट बिल्डिंग्स के नाम। हाँ, डिफरेंट बिल्डिंग्स के नाम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। कनेक्शन। और आप लोग का प्रिपरेशंस कैसा था उसके बारे में मुझे बताइए। प्रिपरेशंस कुछ नहीं था, हम लोग बस लास्ट टाइम पे नाम दिए है क्योंकि हमें क्लास बंक करना था और हमारा कोई प्रिपरेशन नहीं था कि हम लोग को कुछ पता चला। हाँ, हम लोग को टॉपिक सुबह पता चला और हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि इस बारे में हमारा क्विज होने वाला है। तो अपना नाम बताइए प्लीज। माय नेम इज आदित्य आनंद। चंद्राशीष मजुमदार। फर्स्ट प्राइज जीता है, कैसा लग रहा है? Obviously feels nice, फर्स्ट प्राइज मिलने से तो अच्छा ही लगेगा। And it was a well organized quiz and obviously फर्स्ट प्राइज हमें मिला है somehow। मेरे दोस्त लोग बोल रहे उन्हें भी पता था, मगर क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था तो उनको चांस नहीं मिला, मगर एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि हमें फर्स्ट प्राइज मिल गया। I'll be selfish।
तो प्रिपरेशन का क्या था हाल? मतलब एक दिन तो पहले रहता है ना कि क्विज है, क्या अब आएगा क्या नहीं आएगा, तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एंड प्रिपरेशन क्या था, क्या सोचा था कैसे क्या करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, वो जस्ट कोई लैंग्वेज मॉडल में चले गए और उधर से करंट अफेयर्स जान लिए। समहाउ हमने मिस कर लिया ये वुमेन्स वर्ल्ड कप वाला पार्ट, हमने वो वाला टॉपिक अच्छे से शायद देखा नहीं हुआ, मगर बाकी टॉपिक्स हमने आई थिंक पूरा रेलेवेंट आ गया, तो वी वर लकी देयर। जब मैं देख रही थी आपका फर्स्ट राउंड पूरा आप लोग ब्लैंक थे, सो टेंशन था कि क्या होगा नहीं होगा? नहीं, हम टेंशन नहीं रखे से कि हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे उस वाले पे, तो अलग से हमने ट्राइज लिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर सही हो कुछ नहीं हो। ओपन क्विज में ये फर्स्ट टाइम था? मैं पहले भी श्री श्री एकेडमी में और आदित्य एकेडमी में क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम, कैसा लगा? इट्स अ प्रीटी एंजॉयबल एक्सपीरियंस, मज़ा तो आया।